Good morning class, welcome back. In the last video we discussed about Lensmaker formula, where we discussed what is the Lensmaker formula, how to derive it, and what are the different types of conceptual problems may come from this topic. Today we will go for the basic lens formula. Okay, हम derive करेंगे lens formula कैसे derive करते हैं. That we gonna study. What is lens formula? 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. What is f? F is the focal length, v is the image distance, and u is the object distance. Okay. Now this derivation again is of three different types. But हमारे नोट्स में सिर्फ एक ही है, बाकी दो तुम्हें पढ़ना है. मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं आता है, आ सकता है, वो नोट से तुम्हें पढ़ोगे. But in all the three form derivations, the basic steps are same. Which basic steps are written in the notes? What is general step of thinking? So we will focus on those general steps. We will not focus on the derivation because derivation रट्टा नहीं मानना है. तुमको बेसिक जनरल स्टेप्स रट्टा मानना बिकॉज दैट जनरल स्टेप्स फॉलोड इन ऑल द थ्री डेरिवेशंस. Okay, now how there are three derivations that you need to understand. First we take a convex lens. We know convex lens make a image real, make a image virtual. दो टाइप की इमेज बनाते हैं. And we make a concave lens, and concave lens always make a virtual image. So these are the three derivations which you need to study. These are the two which you need to study from a refresher, and this I will do it in the board. ओके, इस तरह से तीन डेरिवेशन होता है लाइक दिस. एक बार कन्वेक्स लेंस लेंगे, इमेज रियल बनाएंगे, वहां से एक डेरिवेशन होगा. एक बार कन्वेक्स लेंस लेंगे, इमेज वर्चुअल बनाएंगे. दैट मींस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन O एंड F. फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के अंदर रखना पड़ेगा. आई होप यू रिमेंबर ऑल द रे डायग्राम्स. ओके, नाउ व्हाट वी इज आवर फोकस. आवर फोकस इज सी हाउ द जनरल स्टेप्स आर अप्लाइंग हियर. तुम्हें जनरल स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे और बाकी तीनों के तीनों डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम. ओके, नेक्स्ट, ये डेरिवेशन करने से पहले तुम्हें क्या क्या लिखना पड़ेगा? तुम्हें लिखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, तुम्हें लिखना पड़ेगा एजम्पशन. साइन कन्वेंशन में क्या लिखोगे? ऑल ऑब्जेक्ट्स मेजर्ड फ्रॉम ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. द डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव and the distance measured opposite direction of incident ray are negative. The distance towards positive y-axis is positive. The height towards positive y-axis is positive. The height towards negative y-axis is negative. Assumption में सिर्फ एक assumption यहाँ पे यूज करेंगे कि aperture छोटा है, that the lens is thin, बस, और कोई assumption यूज नहीं करते हैं यहाँ पे. Okay, so let's start with the derivation. Where what we'll do, we'll take a convex lens. Okay, तो कन्वेक्स लेंस बाद में बनाएंगे. पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, एक वर्टिकल लाइन बना दिया. 3 सेंटीमीटर में F, 6 सेंटीमीटर में 2F, अगेन 3 सेंटीमीटर में F, 6 सेंटीमीटर में 2F. हो गया. अब क्या करेंगे हम? इसको थोड़ी देर बाद में लिखते हैं. पहले मत लिखो बिकॉज अदरवाइज रे विल गो फ्रॉम देयर. नाउ जनरल स्टेप्स पे चले जाओ. द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनरल स्टेप इज ड्रॉ द रे डायग्राम. ओके, नाउ व्हेन यू ड्रॉ अ रे डायग्राम वी यूज टू डिफरेंट रेज. Which two rays you have to draw, that is also written in the general steps. Okay, for example, this is the object A, B. According to general steps, दो रे लेना है. एक parallel to principal axis, passing through focus, and दूसरा passing through optical center. Okay, so this is the image A dash, B dash. ये आपके general steps में लिखा हुआ है. अब शो ऑफ के लिए तुम क्या करो, एक लेंस बना. नाउ यू कैन रब दिस वन. बेसिक्स खत्म हो गया. ओके, दीज डॉटेड लाइंस आई हैव ड्रॉन जस्ट फॉर रेफरेंस. So this is the optical center. Now I can say this is F, this is 2F, this is F, this is 2F. So according to the protocol, what is the first general steps? Draw the ray diagram. And in drawing the ray diagram, you have to use two rays. One is parallel to principal axis and this passing through optical center. हो गया. Now what's your next step? Your next step is to search two pairs of similar triangles. Okay, दो pairs of similar triangles निकालना. This step may vary from students to students. सबको अलग अलग similar triangles दिखता है और सबको आंसर मिलेगा. बुक्स में भी अलग अलग similar triangles लेके प्रूफ किया गया है and they all get the same answer, but in between the steps are different depending on what similar triangle you are observing. So what I'm doing for that, I'm drawing a baseline, okay, so that I can observe two similar triangles. One is triangle ABO. Triangle ABO is similar to A dash B dash O. Vertically opposite angle 90-90. A criteria similarity prove हो गया. ABO is similar to
ए बी हो तो यहां से करना पड़ेगा ए डैश बी डैश हो, ए डैश बी डैश हो। ओके, एंड अप्लाई द सिमिलरिटी कंडीशन, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ बी डैश, बी ओ मत लिखना बिकॉज ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर्स, ओ बी लिखना पड़ेगा बाय ओ बी डैश। और एक आएगा ओ ए बाय ओ ए डैश। नाउ सी these are the similar conditions, but there is no use of this condition. OA, these are rays, these are not distances. I need an expression in terms of FVU, where what is F? This is F. What is U? This is U. And what is, sorry, this is F. And what is V? This is V. So I need all the horizontal distances. These are rays. So there is no use of this. ये भी तुम अपने आप समझ जाओगे कि उसको क्यों नहीं लिखना है. Okay? So this is one similarity condition. Now search for, we have to search two pairs of similar triangles. एक पेयर हो गया, अब दूसरा पेयर सर्च करते हैं. ये देखो तो AOF is similar to A dash B dash O, vertically opposite angle 90-90. So triangle AOF is similar to triangle A dash B dash F. Okay, तो यहां से क्या लेंगे, OA by A dash B dash equals to OF by FB dash. Now FB dash लिखो कि B dash F लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर ही नहीं किया हूं मैंने. ठीक है ना. ओके, सो दिस इज नंबर इक्वेशन 2. नाउ सी OA and AB are similar, OA and AB are similar, that means this and this are equal. Okay, so अगर दोनों equal है, that means I can say, what I can say, OB by OB dash will be equals to OF by FB dash. Okay, step 2 खत्म हो गया. The step 1 was to make the ray diagram using two rays, one parallel to principal axis passing through focus, one is passing through optical center. The step 2 was search two pairs of similar triangles and apply the similarity condition. Now step 3. In the similarity condition, break that term which is not in UVF form. तुम्हें देखना है कौन सा U है, कौन सा V है, कौन सा F है, और जो UVF के फॉर्म में नहीं होगा उसको ब्रेक करना है. OB, it is U, कुछ मत करो. OB dash, it is V, कुछ मत करो. OF is the focal length, कुछ मत करो. FB dash, कुछ नहीं. ना U है, ना V है, ना F है. तो you have to break FB dash. I hope you understand class. तो इसको ब्रेक करो. तो FB dash को कैसे ब्रेक करोगे? UVF के फॉर्म में ब्रेक करोगे. तो कहना से OB dash minus OF, OB dash minus OF. So break कर दिया. This is the third step. Okay, in the similarity condition, break the term which is not in UVF form. So मुझे पता चल गया FB dash is not in UVF form. So I'm breaking FB dash as OB dash minus OF. Done. Now the job is to apply sign convention and multiply and cross multiply everything. So let's apply sign convention. What is OB minus U? OB इस तरफ जा रहा है, इंसिडेंट इस तरफ जा रहा है, माइनस U. OB dash plus V, मैं इधर जा रहा हूं. ओके, OF plus F, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. Now substitute all these values here. Minus U, V. OF is F. OB dash V minus F. Now cross multiply करो. Minus UV plus UF equals to VF. हो गया. Okay. Now last step is क्या last step? Dividing by UVF. So dividing by UVF से divide मार दो. Plus UF by UVF equals to VF by UVF. चलो ये UV कट गया. ठीक है ना. यहाँ पे क्या कटा? URF कटा, URF कटा. यहाँ पे क्या कटा? VF VF. तो क्या है? माइनस 1 by F equals to 1 प्लस 1 by V equals to 1 by U. अब इसको दे लेके जाओ. 1 by V minus 1 by U equals to 1 by F. We got the length formula. Class, I hope you understand how to derive the length formula. Again, see. I am not remembering कि इसके बाद क्या करना है. नहीं. I am not remembering this derivation. I am remembering the general steps. So the other two derivations, if you give a try, okay, draw the diagram on your own. Search the two pairs of similar triangles. When you draw the diagram, you also have to see which two rays you are using. One, you can leave this one. ये कभी नहीं आएगा. You can leave, but you have to study at least this one. ये दो चीज पढ़ना पड़ेगा क्लास. दो रे डायग्राम बनाओगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे. Then your job is to search two pairs of similar triangles, apply the similarity condition. In the similarity condition, see which term is not in UVF form, उसको break करो in terms of UVF. Then apply sign convention, cross multiply करो, UVF से divide करो, you will get that. Okay class, let's go for the next thing.
Okay, I forgot one thing. With lens formula, they may also ask you to derive linear magnification. Now, what is linear magnification? Linear magnification denoted by small m. Okay, now what is small m? Small m is size of image by size of object. तो हम size of image को hi बोलते हैं, size of object को ho बोलते हैं, ठीक है ना? This is the magnification. तो आप देखेंगे कि hi by ho कहाँ दिखता है? ये रहा, यहाँ दिखता है. From equation 1, see, a dash b dash by ab is equals to o b dash by ob. अगर मैं इसमें साइन कन्वेंशन डालूं, a dash b dash is minus hi, क्यों माइनस? नीचे की तरफ है. AB is plus HO equals to OB dash is V and OB is minus U. So what I got? HI by HO equals to V by U. That is equals to magnification का derivation. Now there are other formulas also from with respect to magnification. Other formulas क्या क्या है? ये V और U के फॉर्म में. We may have a formula of V and F के फॉर्म में. We may have a formula of U and F के फॉर्म में. So तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखना है, ये और एक क्या रखना है? लेंस फॉर्मूला. वरना भी मैंने समझा U को 1 by F. अब अगर न्यूमेरिकल में तुम्हें U और F के फॉर्म में है तो यहां से V की जगह F लगा निकाल. ओके, V को F के फॉर्म में निकाल, आ जाएगा आंसर. I hope you understand the combined derivation of lens formula and linear magnification. Okay, now my next job is to understand the numerical concept and few fixed sign conventions used in numericals. Okay, now class C, I am about to discuss something with you, but please don't start mugging up those things. It's just a general idea. Okay, but if you start mugging up, you will not understand anything. So try to understand with respect to the ray diagram which you study. Okay, so let's take a small example. If you go to any ray diagrams, for example, this is the lens. It can be convex, it can be concave. Convex भी हो सकता है, concave भी हो सकता है. Okay, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहीं से ऑब्जेक्ट, वहीं से इंसिडेंट रे निकलता है. हो गया. जहां भी ऑब्जेक्ट होगा, लगता है ऑब्जेक्ट इज एबी, वहीं से इंसिडेंट रे निकलेगा. और सारा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना पड़ता है. राइट, दैट मींस ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर टाइम ऑलवेज इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाएगा ना. ऑलवेज, क्या ये ऑब्जेक्ट इधर हो जाए तब भी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर होगा, इंसिडेंट रे इधर ट्रेवल करेगा. दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. Okay, but there is one condition. In case of a virtual object, it may differ. Virtual object में may be positive or negative. What is virtual object? याद है? किसी एक का image act like a virtual object for the other lens, right? In those cases, don't take U negative. Directly use the sign convention. देखो, U negative है कि positive? Okay, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो normally एक object distance is always negative until it is not a virtual object. Okay, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कभी भी पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है. ओके, वो डिपेंड करता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पे है. तो अगर वो नॉर्मल रियल ऑब्जेक्ट है तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, वो तुम्हें देखने का जरूरत नहीं. ओके, नेक्स्ट, अगर एक कन्वेक्स लेंस का बात करूं, इसका फोकल लेंथ किधर होता है? यहां से रे गया, इसका फोकल लेंथ इधर होता है. राइट, दिस इज फोकल लेंथ. तो इंसिडेंट रे इज दिस डायरेक्शन, फोकल लेंथ इज दिस डायरेक्शन. दैट मींस फॉर अ कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये सब फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा. लेकिन इन केस ऑफ कनकेव लेंस फोकल लेंथ कहां होगा? फोकल लेंथ इधर होता है, ऑपोजिट. ये इंसिडेंट रे, फोकल लेंथ इधर है. सो फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस. These things will never change in numerical. It is always negative, it is always positive. I hope you understand class. Object distance is always negative. Okay, except in virtual object. Next, अब तुम चीजों को समझो. अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या? अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, तो अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया मतलब यहां पे कहीं पे इमेज है, ऐसा करके जा रहे हैं. राइट, और अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया मतलब इमेज यहां पे कहीं पे, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, इंसिडेंट रे को उल्टा. मतलब अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया दैट इज इमेज इज फॉर्मिंग इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया दैट इज इमेज इज फॉर्मिंग ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. And we know all the images which are forming in the same side of the object, that are the virtual images. सारे रे डायग्राम देखो, जहां पे ऑब्जेक्ट जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड का इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इमेज है. तो यहां से ये पता चला अगर V पॉजिटिव है मतलब इमेज उस तरफ फॉर्म हो रहा है, मतलब इट्स अ रियल इमेज. यहां से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं रियल इमेज है. अगर V नेगेटिव है मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के साइड फॉर्म हो रहा है, मतलब ये वर्चुअल इमेज है, कंफर्म.
सो दीज थिंग्स आर ऑलवेज वैलिड फॉर ओनली फॉर लेंस. ठीक है ना. ओके नेक्स्ट, एचओ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट ऐसा होता है. अब एच आई अगर पॉजिटिव हुआ, इससे क्या प्रूव होगा? एच आई का नेगेटिव है. एच आई पॉजिटिव मतलब क्या? इरेक्ट इमेज. और इरेक्ट इमेज ऑलवेज वर्चुअल होता है. एंड नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज होगा. एंड इट इज ऑलवेज रियल होता है. तो दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लास. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यू, व्हाट इज फोकल लेंथ. भी से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा. अंडरस्टैंड क्लास? ओके, दैट्स ऑल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट there are few conceptual problems comes from the magnification value. okay, तुम मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के वैल्यू से कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो. किस टाइप का लेंस है. ओके, इमेज किस टाइप का फॉर्म हुआ, वर्चुअल हुआ कि इरेक्ट हुआ. तो एक्चुअली लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू से तुम पूरी कुंडली निकाल सकते हो. कुंडली समझते हो ना? लेंस क्या है, इमेज कैसा हुआ, ऑब्जेक्ट कैसा काम हुआ. ओके, इमेज का नेचर क्या है, everything. So there are total I think 6. So out of 6, few I will discuss out here and few you have to discuss, you have to study from home. Okay, how many are there? There are 6. Okay, so let's take one by one. सबसे पहला, you understand what is your job is. My job is that from the linear magnification value we can predict many things. Type of lens, type of image, nature of image, inverted है कि rect है, लार्ज है कि डिमिनिश्ड है, एवरीथिंग वी कैन अंडरस्टैंड. सो देखो क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन इज +1. तुम्हारा किसी इमेज का फॉर अ लेंस मैग्निफिकेशन +1 है. इसको दो तरीके से पढ़ना है. पहला, मॉड लेके काम करो. मॉड इज 1. इफ मॉड प्लस को भूल जाओ, मॉड ले रहे हैं तो कैन आई से दिस HO by HI. HI by HO is 1. That means HI is equals to HO. Height of image and height of object same हो गया. Clear? Understand? Similarly, I can also say mod of V by mod of U is 1 because M is also V by U and that is also HI by HO. I hope you understand. That means mod of V and mod of U is also 1. I mean image distance and object distance is also 1. Next, if I take the side greater than 0 आ रहा है, पॉजिटिव है ना, greater than 0. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास? ओके, और इसको छोड़ के हम सिर्फ क्या करते हैं, M is positive, negative 0, M is positive. Now HI by HO is positive. HO is always positive, you know. तो positive, that means HI is also positive. HI positive is what? मतलब इरेक्ट इमेज हुआ है, इरेक्ट. Okay, similarly I can say V by U is positive. Okay, U is always negative. Negative to positive, negative. V is negative. मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है. ये समझ में आया क्लास? इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज है. तो क्या क्या समझ में आया इमेज के बारे में कि सेम साइज है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है. ये इम्पॉसिबल केस है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज इनलार्ज हो सकता है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, डिमिनिश्ड हो सकता है इन केस ऑफ कनकेव लेंस, सेम साइज कभी नहीं हो सकता. सो इट इज इम्पॉसिबल इन केस ऑफ अ लेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. यहां से क्या क्या पता चला देखो, सेम साइज है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ऐसा समझ में आया. भी नेगेटिव है मतलब इससे फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब वर्चुअल इमेज इरेक्ट है. तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करने का सिर्फ दो क्राइटेरिया है. एक जो कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है कब, जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है ना, जो कि इनलार्ज होता है, लौता केस. ओके, और कन्वेक्स कनकेव लेंस में सारा डिमिनिश होता है, सेम साइज तो कभी नहीं होता. तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन केस ऑफ अ लेंस. सो इफ आई टॉक अबाउट M इक्वल्स टू -1, लेट्स टॉक अबाउट -1. तो पहले अगर मॉड ऑफ M को 1 तो यही चीज आएगा, HI इक्वल्स टू HO. वापस नहीं बता रहा मैं, मॉड ऑफ V इक्वल्स टू मॉड ऑफ U. एक बार मॉड लेके काम किया, अब मैं साइन लेके काम कर सकता हूं. M नेगेटिव है, सो HI by HO नेगेटिव है. अब HI तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, HO इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है. सो माइनस टू प्लस माइनस, तो HI नेगेटिव आ गया, मतलब क्या, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है.
दूसरा v बाय यू नेगेटिव है, नेगेटिव u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो v पॉजिटिव आया मतलब रियल है। अब रियल इमेज सेम साइज का कब होगा? रियल इमेज फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड है मतलब रियल है, सेम साइज का है, ऐसा कब? कन्वेक्स लेंस में। कब? जो ऑब्जेक्ट एट 2f होता है, जब ऑब्जेक्ट 2f में होता है, इमेज भी 2f में फॉर्म होता है, एंड इट्स रियल इमेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। गो टू द रे डायग्राम्स व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से राइट नाउ। ओके, तो हमने क्या समझा अभी कि ये केस कभी पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ लेंस, बट ये केस पॉसिबल है क्योंकि रियल इमेज फॉर्म होता है, सेम साइज का रियल इमेज कब फॉर्म होगा? जब ऑब्जेक्ट 2f में होगा, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब ओके, नेक्स्ट मान लो m इज ग्रेटर देन +1। ओके, नेचर पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड +1, पॉइंट +1 से ज्यादा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास। वेट, हाँ, लेट मी सी नेक्स्ट केस क्या है। m greater than +1। ओके, आई एम डूइंग रैंडमली, आई एम नॉट डूइंग विद रिस्पेक्ट टू बुक में अलग अलग नंबर में है। ओके, तो चलो पहले बात करते हैं मॉड ऑफ m greater than 1, that is mod of hi is mod of ho is greater than 1, that is mod of hi is greater than mod of ho। मतलब क्या हुआ? इन लार्ज इमेज फॉर्म हुआ, राइट? क्या फॉर्म हुआ? इन लार्ज इमेज, साइज ऑफ इमेज इज मोर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसके लिए v बाय u करने का जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन लार्ज इमेज पता चल गया। अब साइन लेके काम करते हैं। पॉजिटिव मतलब hi बाई ho पॉजिटिव है, तो hi बाई प्लस प्लस, तो hi क्या है? पॉजिटिव है, मतलब इरेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट v बाई u पॉजिटिव है, u नेगेटिव होता है, तो v कितना आया? नेगेटिव, मतलब क्या हुआ? वर्चुअल इमेज। v नेगेटिव मतलब उस तरफ होगा, लेंस का इस तरफ फॉर्म होगा इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज जो इनलार्ज है, ऐसा कब होगा? वर्चुअल इमेज इनलार्ज होगा, एक ही केस में हो सकता है, कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ओके, तब इमेज वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। ओके, बेस जो बाकी के तीन है तुम्हारा काम है, खुद से पढ़ोगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। Okay class, the next is variation of image distance versus object distance for a convex lens। इस ग्राफ को समझने के लिए तुम्हें सारा का सारा रे डायग्राम के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। रे डायग्राम स्टार्ट कैसे होता था? अगर इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज कहां फॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में तो इमेज फोकस से फॉर्म होता है, राइट? वैसे करते 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 जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाता है तो इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होता है। बस इन दोनों चीज को ध्यान देना है, ठीक है? और यहां पे क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक आएगा और इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इंफिनिटी है, इमेज कहां फॉर्म हुआ? फोकस पे। और जैसे में ये है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस धीरे धीरे घटेगा जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, लेकिन इमेज तो इधर जा रहा होगा, तो इमेज डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, तो अब इसके रेस्पेक्ट में हम दो टाइप का ग्राफ बना सकते हैं, एक टेकिंग कंसिडरेशन द साइन कन्वेंशन, एक विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द साइन कन्वेंशन। मैंने u को मॉड ले लिया, v को भी मॉड ले लिया, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइन कन्वेंशन। u नेगेटिव होगा ऑफ कोर्स एंड v इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ एक ही केस में v नेगेटिव होगा, वो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो होगा तो इमेज वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज का हम ग्राफ नहीं बना सकते, वर्चुअल इमेजेस का हम ग्राफ दिखा नहीं सकते, बिकॉज़ एक्चुअल में वो होता ही नहीं। ओके, सो आई विल शो ओनली अबाउट द रियल इमेजेस। तो रियल इमेजेस क्या है? तो एक कंफर्मेशन, दो लाइन देखना। एक, जब इमेज डिस्टेंस फोकस होगा तो पहले इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी लेते हैं, तो इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी मतलब यहां पे कहते हैं, तो सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे इंफिनिटी मतलब यहां पे कहीं पे पॉइंट होगा इंफिनिटी, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? फोकस होगा। ओके, तो मान लो यहां पे एक रेफरेंस लाइन ले लो जो दिखाता है f, v इक्वल्स टू f, और यहां पे एक रेफरेंस लाइन ले लो जो दिखाता है u इक्वल्स टू f। f का वैल्यू कुछ होगा ना 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, तो u 5 सेंटीमीटर यहां पे, v 5 सेंटीमीटर यहां पे, तो f मत समझो, ये वैल्यू है 5 सेंटीमीटर का। ओके, फॉर एग्जांपल तो 5 सेंटीमीटर यहां पे, 5 सेंटीमीटर यहां पे। तो अब जब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी में है तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? फोकस पे।
ओके, दैट मींस पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी कॉमा एफ। तो ये इन्फिनिटी कॉमा एफ मतलब क्या, ये पॉइंट कहां मिलेगा, ये तो इन्फिनिटी है, ये तो इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहां से पैरेलल रेज बनाना पड़ेगा। तो पैरेलल क्यों बनाया, ताकि ये बताना चाह रहा हूं कि दीज टू लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। सो इफ दीज टू लाइंस मीट एट इन्फिनिटी मतलब क्या, ये लाइन इज एफ एंड एक्स इज एक्स मतलब यू मतलब इन्फिनिटी, सो इट बिकम्स पैरेलल। क्लियर। सिमिलरली ऐसे करके u घटेगा तो v बढ़ेगा, देखो u घट रहा है तो v बढ़ रहा है, जो यहां दिखाया मैंने, u वैल्यू घटेगा तो v वैल्यू बढ़ेगा। ओके, सिमिलरली ऐसे करते 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 जब u f के बराबर हो जाएगा, u f के बराबर हो गया तो इमेज कहां पे चला जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अगेन दे आर पैरेलल। दिस इज द रिडक्शन। ओके, नाउ अगर मैं साइन कन्वेंशन u, तो अगर मैं साइन कन्वेंशन u तो नेगेटिव होता है और v ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, तब ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, जहां पे ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ, और ये क्या हो जाएगा, प्लस एफ। अंडरस्टैंड क्लास? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? ये हमने क्लास में पढ़ा है, पावर इज नथिंग बट 1 बाय फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तब पावर का यूनिट जो होता है उसको हम डायोप्टर बोलते हैं, डी। Now, convex lens के लिए focal length पॉजिटिव होता है, मतलब पावर भी पॉजिटिव होगा। These things you studied in class 10. And concave lens के लिए focal length नेगेटिव होता है, तो पावर भी नेगेटिव होगा। Okay? But in class 12, what you need to understand is factors on which power depends on. तो मैंने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 by R1 minus 1 by R2। तो इस 1 by F को पावर लिख सकता हूं क्लास। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, सो वॉट एवर द एक्सप्रेशन, वॉट एवर कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस, फैक्टर्स ऑन विच फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन, पढ़ा था ना, it depends on refractive index, it depends on the color of the light, it depends on radius of curvatures, ये सब पढ़ा है। फिर what will happen to the lens when it dip inside water, this also we studied in the last video, what will happen when I cut the lens in two halves, those all questions valid for power also। बस 1 by F की जगह P लेके सेम चीज करोगे। So that is written as a note that whatever we have discussed in lens maker formula, those all things are valid here also। ठीक है ना, जैसे मान लो पानी में डाल दिया, तो पानी में डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज लेस देन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया तो पावर भी घट जाएगा। हमने पहले पढ़ा था फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, यहाँ पे पावर घट जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, पावर इज डायरेक्ट इनवर्स इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस कर्वेचर बढ़ गया तो पावर कम हो जाएगा। ओके, वहां पे हमने पढ़ा था फोकल लेंथ के बारे में। सिमिलरली पावर इज डायरेक्टली proportional to refractive index, and refractive index inverse proportional to wavelength, मतलब पावर इज इनवर्स proportional to wavelength, मतलब रेड कलर का वेवलेंथ अगर ज्यादा है, पावर ऑफ रेड कलर लेस होगा वेवलेंथ से। So these things, whatever we have discussed there in terms of focal length, the same thing we can go for the power also. Okay. Now we'll go to the last derivation, okay, of this video. Like, what is the net focal length of a combination of two lenses? अगर दो लेंस है तो उसको मैं कंबाइन कर दूं तो उसका नेट फोकल लेंथ कितना होता है, नेट पावर का फॉर्मूला कितना होता है। ओके, तो ये वाला चीज हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डेरिवेशन इज व्हाट इज द कंबाइंड फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देयर आर टू लेंसेज व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कांटेक्ट विद ईच अदर का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, हमें सिर्फ इतना ही करना है। ओके, उसके बाद मैं और एक फॉर्मूला दिखाऊंगा जब when there is some distance between L1 and L2, these are two lenses, but that derivation is not in the syllabus, and we cannot use that expression also in the boards, but it may help in numericals of entrance. Okay, so there are two lenses L1 and L2 which are in contact with each other. There is no distance between L1 and L2. There is no gap. What is the net focal length? ये दोनों लेंस कंबाइन होके एक इमेजिनरी लेंस जैसा काम करता है। ओके, उस इमेजिनरी लेंस का फोकल लेंथ क्या है, वो मेरा एम है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, we take an object, ये ऑब्जेक्ट का रे यहां से यहां तक गया। ओके, डोंट शो रिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच सर्फेसेस। सिंपली जो क्लास में पढ़ते थे, ऐसा करके रे गया सेंटर तक, उसका इधर चला गया। We will show this type of diagram. We will not show refraction through each surfaces like this. You understand? Because it becomes too complicated then. So you will show only one refraction because we are considering the lens is very thin. Okay, ये क्या होगा, बेंड करेगा ऐसे करके। Now, if this lens was not there, then the image would have formed here
Since this lens is here, that means there is further bending will happen and the image will form here. Clear? Okay. So there are two lenses. Combination का कैसे काम करते हैं? पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. दिस इज द बेसिक थ्योरी. पहले लेंस का जो इमेज है वो दूसरे लेंस का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ओके. नाउ सिंस द लेंस आर थिन, तो मैं यहां से डिस्टेंस मेजर करूं, यहां से डिस्टेंस मेजर करूं, यहां से डिस्टेंस मेजर करूं, सब सेम है. तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल दिस इज V, this is V1 and this is U. Okay. Now for lens L1, if I use the formula 1 by F equals to 1 by V minus 1 by U. F is F1, V. For lens L1, I1 is the image. Then what is the image distance? V1. And object is U. Okay. Object distance is O. O is the object for lens L1. The object distance is U. This is equation number 1. Now for lens L2, object is I1 because the image of L1 will act like a virtual object. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाओ 1 by V minus 1 by U, 1 by F2 equals to image distance. Image is I for lens 2. The image distance is V minus object distance. Object is I1 for lens 2. So what is that? V1. Now check out. We did not use any sign convention. So ये माइंड करना पड़ेगा. You have to remember that when लेंस मेकर फॉर्मूला में कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करूंगा. नाउ व्हाट यू डू, यू ऐड बोथ ऑफ देम. 1 by F1 plus 1 by F2 will be equals to क्या हो जाएगा? 1 by V1 minus 1 by U plus 1 by V minus 1 by V1. तो देखो minus 1 by V1 plus 1 by V1 कट गया, तो कितना है? 1 by F1 plus 1 by F2 equals to 1 by V minus 1 by U. हो गया. अब if I imagine V is the image distance for the combination, because this is the final image for the combination, so can I say V is the image distance for the combination and U is the object distance for the combination, right? तो अगर मैं इस ऐसे करके दो लेंस था, इसके बदले मैंने इमेजिन कर दिया एक लेंस है, उस एक लेंस का ऑब्जेक्ट O है और इमेज I है. क्लियर? दैट मींस ये है V, ये है U. तो अगर मैं यहां पे U इंफिनिटी डालूं तो V फोकल लेंथ आएगा. कौन सा फोकल लेंथ आएगा? लेंस 1 का, लेंस 2 का, कि कॉम्बिनेशन का? ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आएगा, बिकॉज दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ द कॉम्बिनेशन. सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी डाल दूं तो इमेज जो फॉर्म होगा वो फोकस से फॉर्म होगा. दैट इज श्योर. दैट मींस इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा. किसका फोकल लेंथ? नेट इमेजिनरी फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो अगर मैं यहां पे ऐसा डालू 1 by F1 plus 1 by F2 will be equals to 1 by F minus 1 by infinity. So we got 1 by F equals to 1 by F1 plus 1 by F2. Now see, तुम्हें इसे समझना है ये वाला लाइन, ये क्या किया मैंने. ओके. मैंने मान लिया कि ये जो V है वो इमेज डिस्टेंस है. किसका? I का. I इमेज का इमेज डिस्टेंस है. There are two images, right? ये जो I इमेज हुआ वो फॉर्म कब हुआ? By combination of both of them, right? So अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को हटा के एक imaginary lens imagine कर लूं, that there is one lens which is formed by combination of these two. So for that one lens, this is the final image. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी डालूं और फाइनल इमेज फोकस पे आए, that means this final image focus is the focus of the combination of the lens. So those two lenses combine together and form the imaginary lens. उसका फोकल लेंथ f है. Okay, so we got 1 by F equals to 1 by F1 plus 1 by F2. Where what is F? Is the focal length of the combined lens. दो लेंस को कंबाइन करके जो इमेजिनरी लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ f है. Similarly, combined power will be equals to P1 plus P2. 1 by F1 is power of lens 1, 1 by F2 is power. Now, similarly, we can say magnification is M1 into M2. This definition is not in our syllabus. Okay, इस लेंस का मैग्निफिकेशन M1 है, इस लेंस का मैग्निफिकेशन M2 है, तो नेट मैग्निफिकेशन will be equals to M1 into M2. Now, when you use this in your numericals, you have to use sign convention. कोई फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे तुम्हें साइन कन्वेंशन यूज करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट द फॉर्मूलाज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल नोट बना के लिख लो बेटा. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर को छोड़ के बाकी जितना भी तुमने फॉर्मूलाज पढ़ा है सब में तुम्हें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है न्यूमेरिकल में. ओके, लेंस फॉर्मूला में, लेंस मेकर फॉर्मूला में, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव मीडियम का फॉर्मूला में, पावर का फॉर्मूला में, ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में, सब जगह व्हेन यू डील विद द न्यूमेरिकल्स
you have to go for sign convention. Okay. Now, other than these two formulas, there is one more case where we have two lenses L1 and L2 separated by a distance x. वहां पर कोई डिफरेंस डिस्टेंस नहीं, तब 1 by फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1 by f1 plus 1 by f2 minus x by f1 into f2. This formula may help you in WBJEE. ओके, तो ये हम बोर्ड्स पे यूज नहीं कर सकते माइंड डेटा. बोर्ड्स में इन क्वेश्चन को करने का अलग तरीका है विच विल डू ओके इन द न्यूमेरिकल्स, बट ये फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर पाओगे बोर्ड में. हो गया. मैंने क्या बोला, when we use this formula in numerical we have to use sign convention. ठीक है ना. मैं बोल रहा हूं we have two lens convex and concave, both have same focal length. ठीक है, मतलब इसका फोकल लेंथ भी f है, इसका फोकल लेंथ भी f है. तो नेट फोकल लेंथ क्या होगा 1 by f1 plus 1 by f2 1 by f plus minus f. कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बट कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो आंसर कितना है 0. तो 1 by f जो आया वो 0 आया, मतलब फोकल लेंथ इंफिनिटी आया. What does that mean? That means this is acting like a plain glass sheet. ग्लास शीट का सरफेस ऐसा होता है ना, इसका फोकल लेंथ इंफिनिटी होगा. ओके, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट लेंसेस is forming a glass sheet. Okay class, that's all for this video class. Thank you very much. We have completed all lens sab kuch. Now we will go to the prism in the next video. Okay, thank you.